semiconductors are those conductors which are entirely pure, natural, and without any impurities mixed in them. ठीक है? And example of intrinsic semiconductors are purely silicon, germanium, arsenic, etc. ठीक है? These elements, if available in the pure form, constitute intrinsic semiconductors. ठीक? And all this silicon, yes, arsenic, ठीक है. And all this silicon and germanium, you have to study. There are two intrinsic semiconductors, silicon and germanium. Both behave in a same way. So either you study about the silicon or either you study about the germanium. It is the same thing. Okay. Now yesterday I told that silicon atomic number is 14, germanium atomic number is 32. Okay. So here electron will be filled as 284 and here 2888. It's the 24, 24, 24 to 26, 26, 26, 26. Wait. This was 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 10, 4s2 and 4p, 4p2. Right? 10, 20, 30 and 32. Okay. So these were known as the valence electron, 4 valence electron, and here also there are 4 valence electrons. I told you this yesterday. Now these 4 valence electrons will make bond with the other atoms of silicon and germanium, because here we are not talking about one single atom or one single atom of silicon or germanium. Here we are talking about the crystals of silicon or germanium. Okay? So I will give the example of silicon. So in silicon, suppose in silicon crystal there are atoms of silicon arranged like this. Okay? Now silicon has how many electrons in its valence shell? 4 electrons. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. This is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Now what will happen? The silicon, these are all silicon, okay? Silicon atoms in the crystal of silicon. Okay. Now they will make bond among themselves. Here are also silicon atoms present. Okay. So यहाँ पे वो here it is making the bond with other silicon atoms of the crystal. Okay. So like this, in a silicon crystal, silicon atoms are present and all the 4 electrons you can see. This is 1, 2, 3, 4. All the 4 electrons are bonded with the other silicon atom. So it has 4 bonds and no free electrons. Can you see any free electrons in the atoms? No, because one is bonded with another silicon. This is another. This is another. This is another. Means all the 4 valence electrons which are present in the silicon atoms are totally bonded. Okay, and this happens at 0 Kelvin. At 0 Kelvin, absolute 0 temperature. Okay, at 0 Kelvin or absolute 0 temperature, you can see that all the silicon valence electrons are bonded with the other silicon atoms. Okay, so at 0 Kelvin there are no free electrons. Means if there are no free electrons, this silicon will behave as a insulator. Behave as insulator, correct? अगर किसी के पास free electron नहीं होगा तो how will it conduct electricity? Because electricity is what? Electricity is the conduction of charges or movement of charges. And when there are no free electrons, no free charges are present, then how will it conduct electricity? It will not conduct electricity.
So at absolute zero temperature, this silicon is behaving as an insulator. Now what will happen? Okay, so as we increase temperature, as temperature increases means at 300 Kelvin. At 300 Kelvin. 300 Kelvin is known as what? 27 degrees Celsius. That is the room temperature. ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा ये चीज. As the temperature increases, that is at 300 Kelvin, 27 degree room temperature, some of the bonds of this silicon starts breaking. ठीक है, यहां से क्या है? This one bond broke and one bond broke, so यहाँ का electron will come out and a vacancy is created. ठीक, यहां से भी suppose एक bond टूट गया, this bond broke and one electron came out and vacancy is created. ठीक है, तो as the temperature increases, temperature increase होगा तो क्या होगा? bond breaks और bond breaking के कारण क्या होगा? free electrons are released. You can see it clearly. As the temperature increase, तो temperature increase, तो जब temperature increase करोगे तो क्या है? इनकी एनर्जी बढ़ेगी. ठीक है, और एनर्जी अगर एटम की या क्रिस्टल की बढ़ी तो क्या होगा? उस एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण इनके बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे. और बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो वहां से क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल रिलीज एंड जिस पोजीशन से ये इलेक्ट्रॉन निकला है उस पोजीशन पे क्या हो जाएगी? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. करेक्ट? ठीक. सो दीस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू थर्मल एजिटेशन. थर्मल एजिटेशन का मतलब व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर. So these free electrons which are released, these are the result of thermal agitation. That is why they are known as thermally generated free electrons. What are these electrons called? Thermally generated free electrons, which are the result of thermal agitation. Okay, so as these electrons moved out of the bond, so there is a vacancy created and this vacancy is known as hole. I have talked about the that in semiconductors what were responsible for conducting electricity. There were two charge carriers, one was electrons and second was hole. So hole is this. Hole is created due to the free thermally generated free electrons in the बॉन्ड. ठीक है, तो क्या हुआ? आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये वाला जो बॉन्ड था वो बॉन्ड टूटा. टूटने के कारण क्या रिलीज हुआ? वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ which is called as thermally generated free electron. और उस इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने के कारण यहाँ पे क्या जनरेट हुआ? एक वैकेंसी जनरेट हुई and that vacancy is known as what? hole. तो hole is what? hole is vacancy. hole is what? hole is vacancies. ठीक है, और अब देखिए क्या होगा. देखिए क्या होगा यहाँ. Now this electron is generated due to thermal agitation. ठीक, तो इसको आप बैलेंस बैंड एनर्जी बैंड्स के फॉर्म में अपन समझते हैं. सपोज दो एनर्जी बैंड होते हैं. कौन कौन से होते हैं? कैन एनीवन टेल? Valence and conduction. What are valence band? अरे बोलो. No free electrons are present there. Valence band. The bonded electrons, the last energy band to contains the valence electron is known as valence band. तो ठीक है. ठीक, ये क्या है? This is the valence band and this is the conduction band. ठीक है, तो at 0 Kelvin, suppose यहाँ पे क्या है? इस तरीके से 10 electrons are present at 0 K. ठीक, at 0 K क्या है? Valence band is full and no free electrons are present because all the electrons will take part in the bonding. So at 0 Kelvin,
this silicon will behave as what? Behave as insulator. तो 0 Kelvin पे क्या है? Valence band is completely filled. ठीक. Now what will happen? As you start increasing the temperature, ठीक है, 0 Kelvin से आपने कहाँ ले आया इसको? 300 Kelvin. 300 Kelvin मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, that is the room temperature. इस सिलिकॉन के एटम को आपने क्या कर दिया? रूम टेम्परेचर में ले आए. ठीक है, तो रूम टेम्परेचर में आने के कारण, ये टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण द इलेक्ट्रॉन्स विल गेन द एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल, एटम्स विल गेन द एनर्जी. तो एटम्स विल गेन एनर्जी, तो क्या होगा वहां पे? बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या रिलीज होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा. ठीक है, और क्योंकि एटम के पास एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वो ये जो एनर्जी गैप है, दिस इज द एनर्जी गैप. सिलिकॉन के केस में इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जर्मेनियम के केस में इट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो वो एनर्जी गेन करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से टूट के कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा. ठीक है, तो सपोज मैंने क्या किया? टेम्परेचर को इंक्रीज किया 300 केल्विन तक, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? कंडक्शन बैंड में. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का चला गया कंडक्शन बैंड में, और एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ का चला गया. मतलब सारे नहीं जाते हैं, बहुत ही फ्यू बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. सपोज 3 और 4 बॉन्ड्स. ठीक है, 3 और 4 बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, बहुत कम बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स में. ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कहां चला गया? कंडक्शन बैंड में. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वैकेंसी आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी? वैकेंसी आ जाएगी. ठीक है, और इन्हीं वैकेंसी को अपन क्या कहा है? होल कहा है. और इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने क्या कहा है? थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब मुझे बताना, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी गैप के बीच में होगा? नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रहना मना है. अगर वो एक बार बॉन्ड से टूट के निकला तो वो सीधा सीधा कहां पे जाएगा? कंडक्शन बैंड में जाएगा, वो बीच में कहीं नहीं रुकेगा. ठीक है, और ये प्रोसेस बहुत ही इंस्टेंटेनियस होती है, एकदम फ्लैश में. ठीक है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वैलेंस बैंड से, तुरंत कहां चला जाता है? कंडक्शन बैंड में. ठीक है, फ्लैश से होता है, एकदम अचानक से गायब हो जाता है. ठीक, so the electron will not stay at this energy gap. Once the electron is released, it will definitely reach to what? Conduction band. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंडक्शन बैंड में क्या हो गया? थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नाउ these free electrons will generate or conduct, not generate, conduct electricity when kept in the electric field. कैसे जनरेट करेगा वो मैं बता रहा हूँ. मतलब आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई? ठीक है, कि प्रोसेस में क्या था? प्रोसेस में ये है कि इनिशियली एट 0 केल्विन ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड. ठीक, फिर जैसे ही यू इंक्रीज द टेम्परेचर टू द रूम टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन, सम ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ द सिलिकॉन ब्रेक. ठीक है, and due to that breaking of bond, the electrons were released, which were known as the thermally generated free electron. And due to the release of electron, a vacancy is created in the atoms. ठीक है, that is known as आपका क्या? होल्स. ठीक, तो मुझे एक बात बताइएगा कि ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनकी पोजीशन कहां होगी? हमेशा याद रखिए, इनकी जो पोजीशन होगी दैट विल बी इन द कंडक्शन बैंड. ऑलवेज रिमेंबर कि थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, एंड ये जो होल्स प्रोड्यूस होंगे these will always remain in the valence band. ठीक है, ठीक, ये हमेशा कहां रिलीज होंगे? वैलेंस बैंड में रिलीज होंगे. इतना बात समझ में आई आपको? ठीक है, दिस इज द जनरेशन ऑफ होल. इसको क्या कहते हैं अपन? जनरेशन ऑफ होल या जनरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. अब देखिए, ये तो बात कब हुई? जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया. ठीक, अब क्या है? एनवायरमेंटल कंडीशन में टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट. ठीक है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है. ठीक, तो होता क्या है? जैसे ही आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में भी ड्रॉप आएगा, और एनर्जी में ड्रॉप आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस कहां गिर जाएगा? वापस से कहां गिर जाएगा? होल में गिर जाएगा. समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जिसमें टेम्परेचर कम करने पे या टेम्परेचर कम हो जाने पे थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स वापस से कहां आ जाता है? होल में आ जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन. क्या होती है ये?
रिकॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस और ये जो जनरेशन की प्रोसेस होती है ये साइमल्टेनियस होती है हमेशा, ठीक है। हर एक टेम्परेचर में क्या है, रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन दोनों क्या है, साथ साथ चलते हैं, ये अलग अलग नहीं है, दोनों क्या होंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे ही मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही जनरेट कर रहा है क्या, होल को, समझ में आ रहा है ना। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने ही अमाउंट ऑफ क्या होगा, होल होगा। तो सपोज इफ ni is the number of charged particle per unit volume, ठीक। if ni is equal to number of charged particles per unit volume और ne क्या है, ne is the number of electrons, number of thermally generated free electrons per unit volume, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। किसी भी एक क्रिस्टल में सेमीकंडक्टर के जितने थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं उतना ही अमाउंट ऑफ क्या होगा, होल्स का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसलिए सेमीकंडक्टर इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है सेमीकंडक्टर्स, बिकॉज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स is equal to the number of holes produced, क्यों, क्योंकि होल्स किसके कारण प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा दैट सेमीकंडक्टर इज electrically neutral because the number of thermally generated free electron is equal to the number of holes, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पहुंच गए कहाँ, कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पे क्या है, होल्स कहाँ है, वैलेंस बैंड में, ठीक है। तो ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। कैसे करते हैं देखिएगा आगे, ये डायग्राम में बने दे रहा हूं। ओके हाँ, अब देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहला कौन करता है, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे कहेंगे, जैसे ये वैलेंस बैंड है, सॉरी दिस इज द कंडक्शन बैंड, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो आपने क्या करी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी दिस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अलग अगर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड्स होगा, क्यों, क्योंकि कंडक्शन बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड इज फ्री, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन द कंडक्शन बैंड, पूरी खाली पड़ी है कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाई, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, वहां पे मूवमेंट होगा इन द कंडक्शन बैंड, एंड ड्यू टू विच करंट इज प्रोड्यूस्ड, या करंट इज क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विल अकर, ठीक है। कैसे होगा इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, आपको समझ में आया, ठीक है। क्योंकि the free electrons are present in the conduction band and conduction band is completely empty, and due to that when electric field is applied the electrons are free to move in the conduction band which constitute the conduction of electricity through them। तो पहला कौन करता है, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कैसे करते हैं समझा दी। सेकंड करते हैं होल्स, ठीक है। होल्स मतलब इनका एपरेंट मूवमेंट होता है, एपरेंट मूवमेंट, थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा क्लास लेट हुई है टेक्निकल एरर के कारण, मैं 5 मिनट एक्सटेंड करूंगा 35 तक, उसके बाद आप केमिस्ट्री ज्वाइन कर लीजिएगा। एपरेंट मूवमेंट ऑफ होल्स कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए अब क्या किया आपने, सपोज ये क्रिस्टल है किसका, सिलिकॉन का, ठीक है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया कहाँ, नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ लगा दो, ऊपर की तरफ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण
यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो दे विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है, और इनको देख और ये तो दे विल स्टार्ट मूविंग एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आई कहा अपन ने। अब ये होल्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे? देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो कहाँ चले गए? कंडक्शन बैंड में, तो इनका तो कोई रोल ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई रोल ही नहीं है, खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दी। अब बचे ये होल्स, ये जो आपको दो होल्स दिख रहे हैं, ये कैसे करेंगे? whenever you apply electric field in the crystal of a semiconductor, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ तो असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल समझिएगा, सपोज आप छोटे बच्चे हो, बाहर कोई बच्चे खेल रहे हैं, तो बाहर खेलते हुए बच्चों को देख के आपका मन नहीं करेगा कि जाके खेलो? खेलोगे ना? बढ़िया, शाम हो गई है, समा बंद गया, एकदम खेलने का माहौल है, तो बच्चे क्या है, किन्हीं के माँ बाप ने छोड़ दिया बच्चे की, जाओ बेटा खेलो, और आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं? बांध के रख रहे हैं, आपको घर में नहीं जाने दे रहे हैं, तो आप उनको देखोगे तो आपका भी मन करेगा खेलने का। तो सेम वे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे लाओगे, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इसके इन्फ्लुएंस के कारण क्या होंगे? एजिटेट होंगे, डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या प्रोड्यूस हुआ? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ। तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा तो कुछ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे? होल्स में चले जाएंगे। कुछ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए? होल्स में चले गए। यहाँ के ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, ये कहां चला गया? होल में चला गया, ठीक है। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ होल में चला गया, तो ये होल क्या हो गया? फुलफिल हो गया, इसने बॉन्ड बना लिया, और यहाँ का बॉन्ड टूट के जनरेट क्या हो गया? यहाँ पे न्यू जनरेटेड होल, न्यू होल, ठीक। इसी तरीके से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? यहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड बन गया, और यहाँ क्या हो गया? न्यू होल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? न्यू होल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? न्यू होल हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एपरेंट मूवमेंट ऑफ होल्स हो रहा है। वास्तव में बताना, देख के इस पिक्चर को, क्या होल्स का मूवमेंट हो रहा है? असल में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। यहां से टूट के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहां आया? इस होल में आया, तो नया होल बन गया। यहाँ का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूट के कहां चला गया? ऊपर चला गया, तो यहाँ नया होल बन गया। क्या होल्स के नंबर में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या होल्स का मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। मूवमेंट कौन कर रहा है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। बात समझ में आई? तो ऐसे ऐसे करके क्या होगा? लगेगा कि होल्स का मूवमेंट हो रहा है, होल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, बट सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या होता है? वहां पे मूवमेंट होता है। इसलिए मैंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है एपरेंट मूवमेंट ऑफ होल्स, एपरेंट मूवमेंट ऑफ होल्स, ठीक है। अब इस पूरे फिगर को समझ में आया आपको? और अच्छे से समझाने के लिए मैं बैलेंस बैंड का एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एनर्जी बैंड्स के रूप में समझाता हूँ इसको, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब एनर्जी लेवल डायग्राम पे, एनर्जी बैंड पे चलते हैं, एनर्जी बैंड पे समझते हैं इसको। चलिए दोनों को लेंगे साथ में, ठीक। और इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है दैट इज आई एच, ठीक है, आई एच। बस 31 हो गया है, 2 मिनट और बचे, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये एक्सप्लेनेशन। अरे यार, नीचे वाला क्या होता है? वैलेंस बैंड। ऊपर वाला क्या होता है? कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड, ये भी कंडक्शन बैंड। अब देखिए एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन और 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इस 27 डिग्री सेल्सियस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे आपके? कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होंगे? कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे डाल दिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन,
और इनको क्या कहा आपने, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कंडक्शन वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए, कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे, ये होल्स बन गए आपके। ठीक, अब आपने क्या करी, अब आपने लगाई यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगाई आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से ये जो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये तो कहां मूव करने लगे, कंडक्शन बैंड में मूव करने लगे, और कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे तो इनके द्वारा जो करंट होगी वो क्या होगी, IE, दैट इज द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां आ जाएंगे, होल्स में आ जाएंगे, ये सारे कहां चले गए, होल्स में चले गए। तो जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा उसमें यहाँ पे क्या आ गए, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए और नीचे क्या हो गए, होल्स बन गए। ठीक, अभी भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, फिर से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहां आ जाएंगे, होल्स में आ जाएंगे। तो फिर से देखिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, सेकंड पे आ गए, सेकंड लाइन पे, तो होल्स यहाँ पे आ गए। ठीक, तो देखिए फर्स्ट से जब आप थर्ड में जा रहे हो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, पहले होल्स फर्स्ट लाइन में थे, सेकंड में दूसरे में आ गए, थर्ड में तीसरे में आ गए, तो क्या हो रहा है, होल्स आर आल्सो टेकिंग पार्ट इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये होल्स का मूवमेंट कैसा है, एपरेंट मूवमेंट है, रियल मूवमेंट नहीं है, याद रखना, रियल मूवमेंट किसका होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का। ये देखिए यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में अप्लाइड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये देखिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं। ठीक, और होल्स कहां मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए पहले फर्स्ट में था, फिर सेकंड में आ गया, फिर कहां आ गया, थर्ड में आ गया। तो होल्स किधर मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ। ठीक है, होल्स किधर मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ। ठीक, इसीलिए ये होल्स को अपन कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये वैकेंसी कैसी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जो वैकेंसी बनेगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो पॉजिटिव चार्जेस का जो डायरेक्शन होता है किधर होता है, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ। यहाँ पे भी होल्स का मूवमेंट कहां हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, दिख रहा है आपको सारे डायग्राम्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा करंट का, नीचे की तरफ। और यहाँ पे होल्स का मूवमेंट किधर होगा, नीचे की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नेट जो करंट होगी, नेट करंट इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू the current due to the thermally generated free electrons plus the current due to the apparent movement of holes। ठीक है, current due to the apparent movement of holes, इतना ही है ये। इसमें एक चीज और है, कौन सा करंट ज्यादा पावरफुल होगा, IE ज्यादा पावरफुल होगा कि IH ज्यादा पावरफुल होगा, उसको मैं कल क्लास में लूंगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से डिले हो गई क्लास। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो किनके कारण होती है, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, उनका मूवमेंट मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अब कल अपन पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स P एंड N टाइप, और डोपिंग क्या होती है। ठीक, और इसको देखेंगे कि IE इस यहाँ पे जो वैल्यू होती है IE इज ग्रेटर देन IH आता है, क्यों आता है, इसको भी अपन रीजन के थ्रू समझेंगे। चलो ठीक है, चलो थैंक यू एवरी